OLE, the utopian world of online education. Hello everyone and welcome to OLE, means Online Learning with Expert. This is your political science class and we are going to start with the second chapter, that is constitutional design. So word constitution is a landmark of democracy. You can say that means democracy lays upon this constitution. So we all are going to know about constitution in detail. So many question arises that why do we need a constitution? आखिर ऐसी क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? And what is this? Why does a democratic country needs a constitution? And especially democratic country को क्या जरूरत है constitution की? What is constitutional design? What is the format of a constitution? आखिर होता क्या है? What are constitutional values? उसमें आखिर क्या चीजें, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसमें क्या बातें होती हैं, why it is and what are those things? We all are going to know about this. How are the constitution drawn up and what is the way to draw the constitution? And who designed them and in what way? In what way? Who are there behind the scene who could draw actually constitution? Who are the person? Those who are designing the constitution, who are they? And once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? Is it possible कि after making the constitution, later on when the conditions prevail and we need a change to do in constitution, is it possible to do this one? These all queries we are going to solve in this class, and we are now going to start one by one. Why do we need a constitution? कि आखिर क्या जरूरत है constitution की? A constitution is necessary because of the following reasons. बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी ऑफ अ कंट्री. It is an important law of the land. Law of the land means it relates to a country, to a nation. जो constitution बनता है वो कहाँ बनता है, किसके लिए बनता है? किसी कंट्री के लिए ही बनता है, किसी नेशन के लिए ही बनता है. ओके, तो इससे इम्पॉर्टेंट लॉ है. वो लॉ जो लैंड के लिए जो लॉज बनते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं. It determines the relationship of the citizens with the government. और ये क्या डिटरमाइन करता है? ये रिलेशनशिप करता है कि वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो सिटीजन ऑफ द कंट्री है, वो उनके और उनके बीच की जो गवर्नमेंट होती है, जो रूल करती है बॉडी, रूलिंग बॉडी होती है, वो उनके बीच के रिलेशन को डिटरमाइन करते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ कैसे रिलेशन है, क्या होने चाहिए. It lays down principles and guidelines which are required for people belonging to different ethnic and religious groups to live in harmony. So it lays down principles और जो guidelines हैं, जो laws बनते हैं constitution में, वो ऐसे बनते हैं जो, क्योंकि हर कंट्री में, चाहे वो इंडिया ले, इंडिया में तो बहुत ही डाइवर्जन मिलता है, अदरवाइज भी किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे तो कास्ट सिस्टम होगा, कलर सिस्टम होगा, या फिर लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, सब में अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं पीपल के, तो उनमें सबके अपने अपने ओपिनियन से इंटरेस्ट हैं. तो हर एक कंट्री के लिए लॉज बनाना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि वो पूरे ग्रुप, पूरे जितने भी ग्रुप्स हैं उस कंट्री को सबको कवर करें, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कोई लॉ ना बने. वो जो भी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या होते हैं? वहाँ की जो जनरल पब्लिक होती है सबके लिए सेम होते हैं. सो इट्स अ गाइडलाइन मिलती है उनको कि हाँ ये रूल्स रेगुलेशन है, ये प्रिंसिपल्स हैं और इसके अकॉर्डिंग ही जो काम होगा, जो कंट्री में जो वर्क होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा. ये सब किस में होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में होता है.
वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अब ये बात उठती कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, क्यों चाहिए, हमें पता चल गया, मगर डेमोक्रेटिक कंट्री में ही में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों चाहिए इसे? In a democracy, the constitution ensures that the dominant group does not use power against less powerful groups. डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, वो इंश्योर करते हैं कि वहाँ की जो पब्लिक है, चाहे वो पावरफुल हो चाहे लेस पावरफुल हो, जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है या जो फिर जिनके पास कुछ भी पावर नहीं, जनरल पब्लिक है, वो दोनों ग्रुप सेम हैं। डोमिनेंट जो पावरफुल जो ग्रुप है वो डोमिनेंट नहीं होगा। ओके, दोनों ग्रुप चाहे वो लेस पावरफुल हो चाहे मोर पावरफुल हो, सब एक बराबर है, उनमें कोई डोमिनेंसी की लीड करने की कोई भी हैबिट नहीं होनी चाहिए। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। ऑल सच रूल्स टुगेदर और कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे क्या होता है, जो रूलर्स होते हैं वो पब्लिक ही चुनती है, इलेक्ट करती है, यानी कि जो गवर्नमेंट है और जो पब्लिक है उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। ओके, और ये कैसे होंगे, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में बने, इट इज सेम फॉर द सिटीजन एंड फॉर द गवर्नमेंट। सर्टेन बेसिक रूल्स होते हैं जो फॉलो ही करने हैं, चाहे वहाँ की गवर्नमेंट जो गवर्निंग बॉडी है वो भी वो रूल फॉलो करेंगे। ये नहीं कि आपने रूल्स तो बना दिए फॉर द पब्लिक एंड यू आर नॉट फॉलोइंग, तो ये नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बने हैं उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन में क्लियरली स्टेटेड होता है एंड इट इज इन रिटन फॉर्म कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी फॉलो करेगी। जो जिनके हाथ में पावर है, जो रूल करने हो, जिनको इलेक्ट किया है पब्लिक ने, वो भी फॉलो करेगी, और जिसने इलेक्ट किया है क्योंकि पब्लिक ने करा है, वहाँ की सिटीजन ने किया, तो वो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगी, वो लॉज फॉलो करेगी। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये सुप्रीम लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी लिखा होता है रिटन फॉर्म में होता है, वो लॉ के फॉर्म में होता है, वो सुप्रीम लॉ होता है कंट्री के लिए। यानी कि सुप्रीम लॉ मीन्स वो सबको मानना ही है। इफ यू आर द सिटीजन ऑफ दैट वन पर्टिकुलर कंट्री, देन यू हैव टू फॉलो दिस वन कॉन्स्टिट्यूशन, वट एवर इज रिटन देयर। The Constitution determines the rights to the citizens for their social, economic and political welfare. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट देते हैं सिटीजन को कि वो अपने सोशल, जो वहाँ के जो सोशल वैल्यूज़ हैं या सोशल वेलफेयर है, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तीनों को लेकर के ही चले, इनका वेलफेयर के लिए हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज जो बनते हैं वो वहाँ की पब्लिक, वहाँ की सिटीजन के वेलफेयर के लिए बनते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे नहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग डिसीजन के बाद बनाए जाते हैं, इसलिए उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो पर्टिकुलर कंट्री के अकॉर्डिंग बनता है, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड है तो वो पर्टिकुलर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ की वेलफेयर की होती जाती है, यानी कि वहाँ की सोशल भी वहाँ का प्रोग्रेस करे, इकोनॉमिकल कंडीशन भी प्रोग्रेस करे और पॉलिटिकल भी स्ट्रॉन्ग हो वो कंट्री। The powers of the government and how the government should function, और कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होती है, गवर्नमेंट के हाथ में कितना पावर है, उसके हाथ में क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकती, एक लिमिट होती है, उसमें सब डिटेल में लिखे होते हैं, लॉज लिखे होते हैं कि हाँ गवर्नमेंट जो आई है, जो जिस कंट्री में गवर्नमेंट रूल कर रही है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्निंग बॉडी में, उनके पास क्या क्या पावर हैं, वो क्या कर सकते हैं, दे कांट क्रॉस द लिमिट, एंड द गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी एंड द वे हाउ टू फंक्शन टू रूल द कंट्री, ये सब चीजें डिटेल में लिखी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज के थ्रू, एंड ये चेंज ऐसे जल्दी नहीं होते हैं। दिस इज फंडामेंटल्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन? आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन होता क्या है? The constitutional design lays down the procedures for the formation of a government. जो constitutional design होता है वो क्या होता है? प्रोसीजर्स होते हैं कि वो जो फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की, जो गवर्निंग बॉडी है उस कंट्री की, वो कैसे करेगी काम, कौन कौन से रूल्स बनाए जाए, वो एक प्रोसेस होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, द होल प्रोसेस प्रोसीजर्स होता है, वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन।
It defines the distribution of power among various organs of the government. Obviously जो गवर्नमेंट बनती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेसी में, वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती है वो सिर्फ एक इंसान से नहीं बनती, एक होल चेन होती है, बॉडी, गवर्निंग बॉडी होती है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एज यू कैन सी हियर इन इंडिया ऑल्सो अलग अलग डिपार्टमेंट है और उसके हेड अलग अलग होते हैं जिनके पास वो पावर होती है कि हाँ ये डिपार्टमेंट आपको देखना है। तो ये सारी जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का कि हाँ आपको ये डिपार्टमेंट आपके लिए, यू आर द हेड ऑफ दैट वन एंड यू हैव दीज मेंबर्स जो थ्रू आउट उसके वर्क करेंगे और उसकी प्रोग्रेस के लिए वर्कआउट करेंगे और वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू आउट उस डिपार्टमेंट के लिए थ्रू आउट द कंट्री सब पे चलेंगे और वहाँ की सिटीजन फॉलो करेगी। ये रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन फॉर्म में होती हैं और ये जो गवर्नमेंट जो बॉडी होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन पार करते हैं पर्टिकुलर एक बॉडी को, एक ऑर्गन को कहें या एक पार्ट को कहें, वो अगर जो होती है वो भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है। ये सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं होता है कि वहाँ की पब्लिक फॉलो करेगी, जो बॉडी है जो गवर्निंग बॉडी वो फॉलो नहीं करेंगी, नहीं, नो, दिस इज फॉर बोथ द सेक्शंस। गवर्निंग बॉडी को भी करना है वही और वहाँ की सिटीजन को भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो फॉलो करने हैं। The Constitution also puts a few restrictions on the power of a constitutional design body. कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बने हैं उसमें एक लॉ ये भी है कि उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनके पास भी लिमिटेड पावर है, वो उस लिमिट को, उस पावर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, बियॉन्ड दैट नहीं जा सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, जो डिज़ाइन बना उसमें भी हैं। तो इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि दिस इज़ द लिमिट, इसके बाद ये क्रॉस नहीं करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है। एक प्रोसीजर होता है, लॉन्ग प्रोसीजर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। Within a state, a constitution defines the principles upon which the state is based, the procedure in which laws are made and by whom. Within state क्या होता है? Constitution define करता है कि principles जो हैं वो state पे किस particular कौन बना रहा है, जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन है और वो किस पे चला रहे हैं। प्रोसीजर का पूरा चेन क्या क्या, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या, उसके कैसे उसको फॉलो किया जाएगा। ऑल द फंक्शंस आर देयर इन दैट वन लॉ। सम कॉन्स्टिट्यूशंस, स्पेशली कॉडिफाइड constitutions, also act as limiters of the state power by establishing lines which a state's rulers cannot cross, such as fundamental right. कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे भी होते हैं जो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कुछ कोड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर कोड है इस कॉन्स्टिट्यूशन का और उस कोड को वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे स्टेट जो अगर स्टेट के हाथ में पावर है तो वो लाइन एक लाइन होती है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकते। सच एज फंडामेंटल राइट्स, जैसे अगर कोई लॉज बना रहे हैं या गवर्निंग बॉडी उसको अप्लाई कर रही है तो जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं ह्यूमंस को वो कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, उस पर कहीं भी वो उसे हर्ट नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। देयर इज अ लिमिट फॉर दैट वन। Now the next one is what are constitutional values. आखिर constitutional values उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कौन से लॉज हैं, we are going to know. Constitutional value refers to the value indicator of constitution with the guarantee of democratic system in the process of human pursuit of constitutional government order, promotion of social justice and social development, and realization of fundamental human rights, including people's sovereignty. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है वो रिफ़र करती है, इंडिकेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन की और ये गारंटी देती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ की पब्लिक के लिए ही बना है, वेलफेयर के लिए बना है, चाहे वो सोशल उसकी प्रोग्रेस हो, चाहे इकोनॉमिकली हो प्रोग्रेस है, चाहे पॉलिटिकल हो, इट इज़ ऑल अराउंड द ह्यूमन बीइंग।
क्योंकि ये सब चीज़ किसके लिए, ह्यूमन के लिए। तो जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री की गवर्नमेंट है, वो जो ऑर्डर्स देती, जो प्रमोशन देती है, वो सोशल जस्टिस पे होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट पे होती, और उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जो ह्यूमन्स राइट्स हैं और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो हर्ट ना हो, वो पीपल के अगेंस्ट ना हो, उनके वेलफेयर के लिए, उनके लिए हो। तो ये जब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है किसी भी कंट्री का, या किसी के कंट्री के लॉज बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन चलता है इसके लिए कि हाँ, कौन-कौन सी वैल्यू को हमें इसमें इंक्लूड करना है। लॉज़ जो बनते हैं वो बहुत ध्यान से बनते हैं कि वो उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री, हर कंट्री की अपनी नीड्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग बनता है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप? अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे ड्रॉ होता है? आखिर उसमें करता कौन है? कैसे होता है? व्हाट इज़ द वे? बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइंग कंट्री। जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और जिस कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, ये वो मेंबर्स बनाते हैं उस कंट्री के लिए। बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बनाते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइंग कंट्री। जिस कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो वहाँ के असेंबली के मेंबर्स बनाते हैं। कौन बनाता है? वहाँ के असेंबली के मेंबर्स बनाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट वन कंट्री। An assembly is held, and after many years of discussion about the specific needs of the country and its people, and elected members are required to give the consent and give any law or rule, which are then discussed in the parliament and the constitution drawn up. जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं, एक लॉन्ग डिस्कशन चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज बनते हैं वो 1 या 2 दिन में नहीं बनते हैं, महीने 2 महीने में नहीं बनते। इट टेक्स टाइम, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। उसमें सारे हेड्स होते हैं, हेड्स मीन सब लोग अपनी-अपनी, जो असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी-अपनी राय देते हैं कि हाँ, ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी कंट्री के लोगों के लिए इट इज़ गुड फॉर देम। this should be implemented and this should be included. जब include होगा then only it will be implemented later on, but it should be included as a law in a constitution. तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें सारे हेड्स काम करते हैं, और ऑल टुगेदर जब सबकी एक राय होती है, जब सब एक राय पे आ जाते हैं कि यस वी आर एक्सेप्टिंग दिस वन, ये नहीं कि कोई आगे जा रहा है, नो आई डोंट लाइक दिस वन, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ऐसे रीजंस नहीं होने चाहिए। क्या क्लियर कट होना चाहिए, यस इट शुड बी एक्सेप्टेड। सबके कंसेंट लिए जाते हैं कि यस इट इज गुड फॉर अ नेशन एंड इट विल बी included in our constitution, then it is included. Once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? अब ये क्वेश्चन उठता है कि वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री या किसी भी कंट्री में बन जाता है, तो क्या वो उसमें लेटर ऑन चेंजेस कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू चेंज लेटर ऑन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? We will know about this one also. Yes, of course, amending the constitution of India is the process of making changes to the nation's fundamental law or supreme law. यहाँ हम इंडिया की इसलिए बात करें कि लेटर ऑन वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दिस इज पॉलिटिकल साइंस स्पेशली फॉर इंडिया। सो इज अ एग्जाम्पल कि अमेंडिंग जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस। अगर अमेंडमेंट करना है, कोई चेंजेस लाना है, तो वी हैव टू मेक द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द नेशंस फंडामेंटल लॉ, सुप्रीम लॉ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा सुप्रीम लॉ है, उसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। वी कैन मेक द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज इट पॉसिबल? कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज वैसे कैसे होता है? Written constitutions are not only likely to give rise to greater problems of interpretation than unwritten ones, but they are also harder to change. Maximum क्या होता है? Written constitutions होता है, and it is quite good for interpretation
एंड जो अनरिटन होता है, जो रिटन फॉर्म में नहीं होता है, उसके भी चेंजेस कर सकते हैं, बट इट इज़ हार्डर टू चेंज. Unwritten constitutions tend to change gradually, continually, and often imperceptibly in response to changing needs. अगर हमें लेटर ऑन जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है उसके बाद लेटर ऑन वी रियलाइज, जो कंट्री रियलाइज करती है, वहाँ के असेंबली मेंबर्स रियलाइज करते हैं कि नो देयर शुड बी सम चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर वो अनरिटन फॉर्म में, मतलब रिटन फॉर्म में नहीं है. तो लेटर ऑन क्या करते हैं, उसमें टाइम लगता है, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम लगता है, बट इट कैन बी डन. But when a constitution lays down exact procedures for the election of the president, for relations between the executive and legislative branches, मगर जब क्या होता है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है एग्जैक्ट प्रोसीजर्स पे बनता है, जिसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांचेस भी होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, और फॉर डिफाइनिंग वेदर पर्टिकुलर गवर्नमेंट फंक्शंस इज टू बी परफॉर्म बाय द फेडरल गवर्नमेंट और अ मेंबर स्टेट, और उसको बिल्कुल सही नॉर्मल वे में, एग्जैक्ट वे में इस प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और गवर्निंग बॉडी जो है वो इसे एग्जैक्ट एग्जीक्यूट भी कर रही है, then the only constitutional way to change these procedures is by means of the procedure provided by the constitution itself for its own amendment. अगर ये सब कुछ राइट पाथ पे चल रहा है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस अगर लाने, तो चेंज भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना वो किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने में दिया हुआ कि हाँ दीज आर द रूल्स एंड लॉज, आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं. फाइन. Any attempt to effect change by means of judicial review or interpretation is unconstitutional unless, कोई भी जो अटेम्प्ट होता है वो चेंज करने के मीन्स बाय मीन्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है या इंटरप्रिटेशन है वो इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, अनलेस ऑफ कोर्स क्यों है, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट अ बॉडी मे चेंज रादर देन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है चेंज कर सकती है रादर देन टू इंटरप्रेट, उसको इंटरप्रेट करने से अच्छा है कि उसे चेंज कर दे. दैट इज इन द यूएस सुप्रीम कोर्ट. नाउ वी आर गोइंग टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, how it is made or how it is drawn up, we are going to know about it. Under Article 5 of the Constitution, there are two ways to propose and ratify amendments to the Constitution. कि हम जो क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक बार बन गया तो वी कैन अमेंड इट और नॉट. यस, and we have in Indian Constitution Article 5 is here, और उसमें टू वेज दिए गए हैं टू प्रपोज करने के लिए कि हाँ मुझे अमेंडमेंट चाहिए एंड टू रेटिफाई कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए. देयर आर टू वेज टू डू दिस वन फॉर द अमेंडमेंट. To propose amendments, 2/3 of both the houses of Congress can vote to propose an amendment. जो अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं 2/3 ऑफ बोथ द हाउसेज मीन, बोथ द हाउसेज मीन्स राज्यसभा एंड लोकसभा, बोथ द हाउसेज ऑफ कांग्रेस कैन वोट, वो वोट कर सकते हैं, तो प्रपोज कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये अमेंडमेंट चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. दिस इज द फर्स्ट वे. और 2/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन आस्क कांग्रेस टू कॉल अ नेशनल कन्वेंशन टू प्रपोज अमेंडमेंट्स, या फिर 2/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स के कांग्रेस को कॉल कर सकते हैं कि कन्वेंशन को बुलाएं और प्रपोज करें कि हाँ मुझे ये अमेंडमेंट्स चाहिए इन आ कॉन्स्टिट्यूशन. सो दीज आर द टू वेज फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Who designed the Constitution of India? Now question arises this one also कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने डिजाइन किया है. बेसिकली maximum of you whether know it or not, but today you all are going to know about this, that Prem Bihari Narayan Raizada, the man who hand wrote the original constitution of India. India का constitution is the longest, the largest one on the earth, and it was hand written, and it is preserved in a helium filled case in, and now it is there in the parliament. वो हीलियम केस फिल्ड केस में प्रिजर्व है
पार्लियामेंट में, और उसे हैंड रिटन किया गया है। हैंड रिटन किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायसादा। ही was the person behind the writing. Hand written means हाथ से लिखा था at that time, and the longest one. So amazing. Dr. B.R. Ambedkar, Bhim Rao Ambedkar, chairman of the drafting committee, is often called the father of the Indian Constitution. Bhim Rao Ambedkar, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने ड्राफ्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ही वॉज द चेयरमैन एट दैट टाइम. The 389 members of the Constituent Assembly formed many committees to examine in detail all the issues relating to the country. Obviously, क्योंकि गवर्निंग बॉडी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन एक या दो दिन में नहीं बनता, ये एक इंसान नहीं बनाता है. वी गॉट टू नो अबाउट दिस वन. तो इसमें कितने मेंबर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 389 मेंबर्स इंक्लूड थे, और उन मेंबर्स ने अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग कमेटी बनी थी, अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्होंने एग्जामिन किया कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी कंट्री के सिटीजन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, चाहे वो सोशल है, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो, वो क्या क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए. बहुत डिटेल में प्रोसीजर चला था, डिस्कशन हुआ था, देन ओनली जो हमें आज दिखता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट वॉज ड्राफ्टेड. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास की कॉन्स्टिट्यूशन के जितने क्वेरीज थे कि कैसे बनता है, कौन बनाता है, क्या होता है, और व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. और बेसिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो ये किसने बनाया, कैसे बना, वी ऑल गॉट थ्रू दिस. We will continue this one with another topic. Till then, take good care of yourself. Have a good day. Thank you.